जेवतो मग. In last lecture, I think we were watching about the numerical based on this tensile strength and work of rupture, right? We have covered, actually we have calculated, I think stress, strain. Also we have calculated initial tensile modulus. Am I right? Yes, sir. Now we'll calculate the work of rupture. Okay. Now you tell me what is work of rupture? Sir, it is the product of breaking load to the breaking elongation. Breaking load to the breaking elongation. Yes, sir. What do you understand exactly by work of rupture? If I give you the values regarding work of rupture about the fibers, what you will understand from the values of work of rupture? Okay, actually this is very simple concept. Work of rupture means what? Work Energy. required to rupture the specimen. In short, work required to rupture the specimen means what? Work is what? Work is nothing but energy. We are applying energy. We are using energy to rupture the specimen. It means to break the specimen. So in other words, we can say that energy required to break the specimen. That will be the work of rupture. Energy required to break the specimen is nothing but the work of rupture. Then what is work of rupture here? Here we have already drawn a graph. Actually, which shows how much load we are applying. If you see the y-axis, right, how much load we are applying onto the material, right, so that one point will come, the material will break. Your material will break here. Obviously, this is the maximum load what you are applying here in order to break the specimen. We can say that, is this a work of rupture? This is just a load. Just a load required to break the specimen. Work of rupture is energy required to break the specimen. How much energy is there? So we can say that energy we can able to calculate. Suppose at this point it breaks at the extension of 12, we can say that 12 mm, or we can say at the strain of 0.12, your specimen breaks. So generally this work of rupture we used to calculate by calculating the area under this curve. We can able to calculate area under this curve, right? So which shows us the energy required to break the specimen. The area under the curve will always shows us the energy required to break the specimen. This point we have seen in textile testing, right? Whenever we want to calculate work of rupture, toughness of material, right? How material is tough, because it gives idea about toughness of material. In order to know the how material is tough, we used to calculate the area under the stress strain curve. This is the curve, right? And we calculate the area under this, which will shows us the energy required to break the specimen. Energy required to break the specimen. Now, how to calculate this energy then? How to calculate this energy? How to calculate this area? I will calculate the energy. First of all, you tell me what is the unit of energy? What is the unit of energy? Joule.
Yeah, it's joule. So unit of energy is joule. So if we are able to calculate joule, if you are able to calculate joule required to break the specimen, then we can say that we can able to calculate the work of rupture. So once again you tell me, when we can say that we did a 1 joule of work, when we can say that we did a 1 joule of work, I did a 1 joule of work. This is totally physics concept. Those who have studied science or 11th, 12th, they should answer this question. Then we can say that 1 joule of work I did. I have lifted a mobile. One Newton force into 1 meter distance. 1 Newton force into 1 meter distance. Into 1 meter distance. Okay. So it is right actually. I will define this term when we can say that 1 joule of work is done. Suppose if when a force of 1 Newton is displaced through a distance of 1 meter, right, in the direction of the force applied. Suppose this is an element, say for example duster or mobile or stone, anything. This is an element. Suppose if I applied a 1 Newton of force, if I applied a 1 Newton of force, so this position is A. So because of the application of this 1 Newton force, it will displace its position and it reaches to the position B. And if this distance is 1 mm, if this distance is 1 mm, sorry, 1 meter, sorry, 1 meter, right, then we can say that we have done a 1 joule of work. We done a 1 joule of work. So there is a particular position. When we apply the force, it will reach to the another position. The distance will be 1 meter. It means what? When we apply force of 1 Newton, so that your object will displace through a distance of 1 meter in the direction of force. In the direction of force. Then we can say that we did the 1 joule of work. We did 1 joule of work. सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान के चलो कि ये डायरेक्शन ए वाला डायरेक्शन है वर्टिकल, 1 न्यूटन फोर्स लगाया खाली, और ये क्या होना चाहिए फिर ऑब्जेक्ट 1 मीटर से डिस्प्लेस होना चाहिए. जब ये 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि 1 जूल काम इसने कर दिया, 1 जूल का काम इसने कर दिया. इतना सिंपल डेफिनेशन है इसका. So if you able to calculate these, how much joule it works, right? How much joule we can able to calculate here under the curve, then we can say that that will be the work energy required to break the specimen. That will be the work energy required to break the specimen. So here we'll take the help of axis so that we can able to calculate. Suppose in the image you can see here a square. इसको आप अगर देखोगे ध्यान से तो इसका डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, ये कितना है, सब कहाँ पे भी मैंने रैंडमली निकाल दिया. एक बॉक्स, एक स्क्वायर निकाला अंडर द कर्व, एक स्क्वायर निकाला, इसका डिस्टेंस लिया मैंने 1 सेंटीमीटर का. मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ये बॉक्स में यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ. कहाँ पे भी निकालो आप, बहुत सारे स्क्वायर्स रहेंगे आपके ग्राफ में. खाली ये डिस्टेंस कितना लेना है, 1 mm. वैसे ये डिस्टेंस कितना लिया इन्होंने,
आप अगर ग्राफ पेपर के निकालोगे तो एग्जैक्ट ही आएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये मेरे ग्राफ के ऊपर, आपके यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा। तो ये डिस्टेंस हमने कितना लिया, 5 मिली न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं, 5 मिली न्यूटन यहाँ पे हमने लिया। हमको खाली क्या प्रूव करना है, वी हैव टू अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स टू द फॉर डिस्प्लेसिंग दी 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे लिया कितने मैंने, कितना फोर्स लिया मैंने, फोर्स कितना लिया, हाउ मच फोर्स आई हैव टेकन हियर, 5 न्यूटन। नहीं, फिर से गलती कर रहे हैं, ये न्यूटन है क्या यहाँ पे, नहीं, मिली न्यूटन। तो 5 न्यूटन कहाँ पे लिया हमने, हमने क्या लिया, 5 मिली न्यूटन लिया। यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे 5 मिली न्यूटन लिया, ये लिया 5 मिली न्यूटन। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिया, 1 mm. 1 mm. Now you tell me, what is our definition? What is our definition of 1 joule work? न्यूटन में चाहिए और मीटर Yes. में चाहिए। There should be a force in Newton, and that is also 1 Newton, right? Means you have to convert it into 1 Newton. Ultimately, it will convert for the 5 Newton, because the force actually we have taken is 5 milliNewton. When you convert it into the Newton, obviously it will get converted into the Newton. Newton is a unit, and actual force will be 5 Newton. So that is fine. Just we have to convert it into Newton, and this quantity we have to convert it into what? This one, 1 millimeter. We have to convert it into what? According to the definition, मीटर। meter. Obviously, we have to convert it into the meter. So we have to just take the conversions. So it is 5 millinewton. What to do to convert into the Newton? What to do for converting into Newton? Ten to the power minus 3. Multiplication of 10 to the power minus 3. Yes. Multiplication of 10 to the power minus 3. बहुत सिंपल चीज है। देखो, अगर किसी को कन्वर्जन अभी भी दिक्कत जाता है तो सिंपल एग्जांपल है, 1000 मिली न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन, इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ऑलरेडी आपको मिली न्यूटन दिया है, 5 मिली न्यूटन दिया है, तो न्यूटन मतलब कितना होगा, है ना। आपको कितना दिया है, 5 मिली न्यूटन दिया है, तो न्यूटन मतलब क्या है, ठीक है ना। कितना न्यूटन आएगा, देखो 5000 मिली न्यूटन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कहाँ रे 5000 आएगा। हाँ, एक रुको रुको रुको, ये यहाँ पे गया, ये 5 इंटू 1 न्यूटन वहाँ पे गया, 5 इंटू 1 वहाँ पे गया। ये जो क्रॉस मार्क अपने को निकालना है ना, और इंटू 1000 यहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन मार्क को हमने ले लिया, ये 1000 नीचे जाएगा, 5 इंटू 1 बाय 1000। बाय 1000 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बाय 1000 का मतलब क्या है, 5 इंटू 1 इज 5, 10 इंटू -3। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। इसलिए कभी भी मिली न्यूटन से न्यूटन कन्वर्ट करना है तो बाय डिवाइड बाय करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 3 बोल सकते हैं। डिवाइड बाय 1000 क्या है और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 3 क्या है, ये एक ही है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। जिसको मैथ्स का थोड़ा कम जानकारी उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो इस एज में तो इतना जानकारी तो होना ही चाहिए, फिर भी आप अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है अपने लिए। बहुत से बच्चे हैं, मैं फिजिकली जब क्लासेस लेता हूँ तो मुझे वो समझ में आता है, अभी ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है कितने जन को ये पता है कितने जन को नहीं पता है। सो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 3 when we do, then we will get it converted into the Newton.
So what I will do here, 5 into, I will do 5 into 10 raised to minus 3. 5 into 10 raised to minus 3. Now I have to convert it into meter. This 1 millimeter, I have to convert it into meter. What I will do? 10 raised to power 3. Minus 3. 10 raised to power minus 3. We have to multiply by 10 raised to the power minus 3. सेम एग्जांपल है, मिलीन्यूटन का न्यूटन जैसा है वैसे ही मिलीमीटर का मीटर है, बस कुछ डिफरेंस नहीं है. ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं. जैसे मिलीन्यूटन का न्यूटन किया वैसे ही मिलीमीटर का मीटर करना है, क्योंकि मिलीमीटर का सेंटीमीटर कितना होता है 10 डिवाइड बाय 10, और उसको अगर फिर से मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100, तो वो हो जाता है डिवाइड बाय 1000, तो इसलिए वो माइनस 3 हो जाता है, 10 रेज़ टू माइनस 3. So 1 into 10 raised to minus 3. 1 into 10 raised to minus 3. That is the conversion. ये आ गया मीटर, ये हो गया 1 मीटर और ये हो गया न्यूटन. So in order to displace that particular object, we can say that, इसको हम अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, हम तो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए एक डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन आपका, ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल. सो 1 मीटर से डिस्प्लेस करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, कितना एनर्जी लग रहा है? 5 जूल. 5 जूल. Yes. 5 जूल, Sure. क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ना अभी, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 एंड 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, है ना, क्योंकि ये हो गया न्यूटन फोर्स थ्रू अ यूनिट डिस्टेंस, है ना. न्यूटन फोर्स हो गया ना. न्यूटन फोर्स मतलब हम क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, इट इज अ जूल. ए फोर्स of 1 Newton is displaced through a distance of 1 meter. Now here a force of 5 Newton is displacing a distance of 1 meter. आया समझ में? यहाँ पे क्या कर रहा है, force of 5 Newton is displacing the distance of 1 meter, means it will be 5 joule. अगर 1 Newton रहता तो 1 joule रहता. अब ये 5 Newton है इसलिए 5 joule बन गया. 5 joule into ये 10 raised to minus 3 और ये 10 raised to minus 3, ये दोनों को लेना पड़ेगा. ये हो गया आपका 10 raised to minus 6. So how much work you did here? 5 joule into 10 raised to minus 6. 5 joule into 10 raised to minus 6. इस तरीके से निकालना है. अब यहाँ पे देखो आपका जो ग्राफ पेपर है ना, आपके ग्राफ पेपर के ऊपर अगर 5 का निकालते बैठोगे तो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे. तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 का ले लेते हैं. आपका ग्राफ पेपर में y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिली न्यूटन लिया आपने? हाउ मच मिली न्यूटन यू हैव टेकन ऑन y एक्सिस? 10 1 सेंटीमीटर 10 लिया है. और x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm. 1 सेंटीमीटर टू 1 mm लिया है. तो हम सपोज ये बॉक्स फिर से निकालते हैं हम यहाँ पे एक, और ऐसे मान के चलते हैं. आपको मानना नहीं, आपको एग्जैक्ट निकालना है ग्राफ पेपर के ऊपर. मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है. हाँ? तो ये बॉक्स जो है वर्टिकली ये हमको दे रहा है, कितना फोर्स दे रहा है, क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मिली न्यूटन है? 10 मिली न्यूटन है. ठीक है, एंड ये एज इट इज है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर. ओके, तो आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है जूल में. कितना हो जाएगा इसका आंसर, कितना आएगा? 10 जूल. 10 जूल, क्योंकि यहाँ पे 5 जूल आ गया 5 से, तो 10 से 10 जूल आएगा. कैलकुलेशन करोगे तो उतना ही आएगा. तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है वर्क 10 जूल इंटू, सॉरी क्या होता है समझ नहीं, 10 इंटू 10 रेज़ टू
-6 जूल, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है, इस तरीके से एक लाइन मारने का, फेंट लाइन मारने का, जो दिखना नहीं चाहिए, और इसके अंदर जितने भी स्क्वेयर्स है, ऑब्वियसली आपके पास स्क्वायर तो होंगे ही 1 by 1 सेंटीमीटर के ग्राफ में, तो स्क्वेयर्स गिनना है आपको। क्या करना है, वो स्क्वेयर्स आपको गिनना है, 1 by 1 के स्क्वेयर्स गिनना है। 1 by 1 के ऐसे स्क्वेयर्स गिनना है। तो कितने आते हैं मुझे बताना है। अब आपको एक प्रॉब्लम जाएगा गिनते समय। प्रॉब्लम क्या जाएगा, कुछ जगह पे स्क्वेयर्स ऐसे रहेंगे, यस सर। कुछ जगह पे स्क्वेयर्स ऐसे रहेंगे। तो आपको वो, अभी आपका स्किल है उसमें, आप कैसे करते हो। ये अगर रहेगा तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, तो इसको आधा ही कंसिडर करने का। ये देखोगे तो यहाँ पे खाली 1/4 ही है, तो इसको 1/4 कंसिडर करने का। यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे में, सॉरी ये 3/4 है, अपने को नीचे वाला पार्ट देखना है, ऊपर वाला नहीं। और यहाँ पे देखोगे तो ये 1/4 है। ऐसे गिनते जाने का। ये साइड वाले जो कर्व के साइड में है उनको गिनते जाने का। 2 हाफ आ गए तो उसको 1 बना दो, 4 1/4 आ गए तो उसको 1 बना दो। ऐसा करते करते, है ना, 3 3/4 और 1 1/4 आ गया तो उसको 1 बना दो। ऐसा करते करते साइड वाले बॉक्स भी गिनना है। और अंदर वाले तो सिंपल है, अंदर वाले तो सीधा सीधा आपको 1 2 3 4 गिनते जा सकते हैं आप, 1 2 3 4 जो भी आएगा। तो गिन के मुझे बताओ कितने बॉक्सेस होते हैं। मैंने जो बताया वो समझ में आ गया ना, क्या करना है। गिन के बताओ मुझे बॉक्सेस कितने आते हैं खाली। वन वन झिरो 1 सेंटीमीटर के 110 आले सर माझे सगळे. 1101 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं क्या आप। $69 सर। हाँ 69 69 69। एक मिनट रुको, चेक करता हूँ मैं। थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को।
सुमित सिंह 52, ओके। और किसी का आया गया, इसका 52 आ गया। शिवानी वो 110 गलत है, आपने कुछ तो गलती किया है, 110 आ ही नहीं सकता, 110 कतई नहीं आ सकता। आपका शिवानी ये बताओ, एक्स एक्सिस पे एक सेंटीमीटर यानी कितना डिस्टेंस है? शिवानी, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, हाउ मच मिलीमीटर यू हैव टेकन, and on y axis 1 centimeter is equal to how much millinewton you have taken? Y axis, सर 54 आया सर। Rishikesh have got 54, okay. Shivani, y axis, y axis, y axis पे मिलीमीटर कैसे, मिली न्यूटन बताओ मेरे को, कितना मिली न्यूटन लिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिली न्यूटन यू हैव टेकन? I think you are not getting my question. Okay. Anybody else? Number of boxes? Pratik Jadhav 53. Okay. और कोई? 54. Sri Ganesh 54. Okay. Those who are near to 57, they are right. Right. 54 is okay, but try to exercise this numerical number of times so that you can achieve the right answer. Right. 54, 55 is okay. 52 need to work out more because there is a difference of 50 joules near about 50 joules. 5 means what? 50 joules. So ठीक है, 52, सर 55, सर एक्चुअल आंसर 57 है क्या सर फिर? 57 है, यस 57 है। तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर आता है आपका 57 जूल, सॉरी 57 boxes square, and each square we have taken as 10 joule, 10 into 10 raised to minus 6, that we have seen already, right? 10 into 10 कैसे निकाला है 10, हमने अभी भी देखा है. Okay. So when you do this, you will get the answer, right? How much is the answer? 570 joule into 10 to the power minus 6. Yes. 570 joule into 10 raised to the 10 to the power minus 6. आज सुना ही नहीं शायद इसको. टेन टू द पावर माइनस 6, 570. अब जिसका 54 आया 54 ही रखो, जिसका 55 आया 55 रखो, 52 आया तो 52 ही रखो. आपको बुक का राइट आंसर बताया मैंने, हो सकता है उनका भी ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 पॉइंट से. 54 रख के आप निकालो, 54 55 जो भी आपका है.
So 570 joule into 10 raised to minus 6. 570 joule into 10 raised to minus 6. ये क्या आ गया आपका? Work required to break the specimen. Work required to break the specimen. Now here actually we have to calculate this work of rupture in joules per tex per meter. Here you have to calculate the work of rupture in what? Joule per tex. Just hold. You have to calculate work of rupture in joules per tex per meter. Per tex per meter. Now convert this value into joule per tex per meter. How will you convert it? How much joule it is? 570 into 10 raised to minus 6. $570 into 10 raised to minus 6 divided by per tex. How much tex is there? ये जो वर्क ऑफ रप्चर हमने निकाला है, कौन से फाइबर के लिए निकाला है, उसका टेक्स कितना है? कितना टेक्स है? 0.2 है। क्वेश्चन में पढ़ो, आपको समझ में आता है कौन से फाइबर को किया है हमने। 0.2 0.2 टेक्स, हाँ, पर टेक्स। ओके, पर मीटर बोला है। अपना लेंथ कितना है? कितना लेंथ के लिए अप्लाई किया है हमने? 100 mm 100 के लिए, 100 के लिए लिया है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया पहले ही 100 मिलीमीटर फाइबर को, यहाँ पे दिखाया देखो, टेस्ट लेंथ कितना है? 100 मिलीमीटर फाइबर को हमने लोड अप्लाई किया है। कौन सा फाइबर है वो? 0.2 टेक्स का। तो मीटर में डिस्टेंस चाहिए, ये तो मिलीमीटर में है, तो 100 तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। 100 उसको मीटर में करना है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना? तो मीटर में हो गया, डिवाइड बाय 1000 मीटर में हो गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये 3 जीरो चले जाएंगे, सॉरी एक मिनट है, आप कैलकुलेट करो इससे, कैलकुलेटर से। मैं यहाँ पे मैन्युअली देखता होता है क्या। आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे आंसर। 3 जीरो चले गए, 1 2 1 2 10 बचा, ठीक है ना? 0.0285। हाँ, 0.0285। कितना आता है? 0.0285। 0.0285 आता है, बराबर है। 0.0285 क्या हो गया वो? जूल पर टेक्स पर मीटर। ये अपना वर्क ऑफ रप्चर है, 0.0285 जूल्स पर टेक्स पर मीटर। ये अपना क्या है? वर्क ऑफ रप्चर है। आप आपके हिसाब से निकाल के देखो, 54 के हिसाब से कितना आता है बताओ। 54 के हिसाब से क्या है वो? 540 हो जाएगा खाली, 570 की जगह पे। 540 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 100 बाई 1000, कितना आता है ये? 0.027। ज़्यादा फर्क आता नहीं, चलो ठीक है। 54 जिसका है उसको आंसर बराबर आएगा। 52 वाला कितना है बताओ मेरे को। ये 54 का कितना बोला? 0.027, ठीक है। और ये 52 वाला बताओ तो सुमित सिंह, आंसर प्लेस करो आपका इसमें चैट बॉक्स में। 52 लेके कितना आता है?
570 की जगह पे 520 आना चाहिए खाली। हर स्टैंडर्ड इज इट विथ 52? यस सर। ओके ओके देन ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट 54 55 आया तो अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बॉक्सेस आपके बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये फाइनल आंसर है आपका, वर्क ऑफ रप्चर पर टेक्स पर मीटर, सॉरी वर्क ऑफ रप्चर इन जूल्स पर टेक्स पर मीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में फिजिकली अगर एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का, तो 13 मार्क 11 मार्क के लिए आता है, तो इसका प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, फ्यूचर वी डोंट नो, द कोविड कंडीशन वी डोंट नो, दो वी आर टीचिंग ऑनलाइन, इफ the conditions are good later on, and if university permits for examination at institute, then definitely this question will come. Definitely means if this question come, definitely it will come for 11 or 13 marks, if this question comes। नहीं तो आप समझ लोगे कि आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, प्रोबेबिलिटी पकड़ के चलते हैं, एक आध प्रोबेबिलिटी आएगा तो क्या करेंगे, आएगा तो 11-13 मार्क के लिए आएगा, तो प्रैक्टिस अच्छा करो, नहीं तो उतना मार्क जाएगा। फिर सिंपल मार्क्स है हाथ के, निकालना क्या है इसमें खाली, इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन में कन्वर्ट करना है, लोड इलांगेशन कर्व निकालना है, पहले स्ट्रेस स्ट्रेन में कन्वर्ट करो, फिर इनिशियल मॉड्यूलस निकालो, कैसे निकालना है वो भी बताया मैंने आपको। देन यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क ऑफ रप्चर, हाउ टू कैलकुलेट वर्क ऑफ रप्चर, दैट प्रोसेस आल्सो आई टोल्ड यू। सो प्रैक्टिस इट by taking previous question papers from the university and extract this type of numerical and try to solve. Okay, now we'll move further. Actually I have solved this numerical that I have calculated here. We have seen all. Okay,
Am I audible? Yes, sir. बताओ absent कौन है, क्योंकि फिर से एक बार लाइट जा सकती है, टाइम निकल जाएगा। absent कौन है? 1 2 3 7 नंबर absent है क्या? रोल नंबर 7। सर सौरभ आजारी आहे सर 22 नंबर. ठीक आहे ना. मला आता मी काही नंबर सांगतो, त्यापैकी कोण प्रेझेंट आहे सांगा, कारण ह्याच्यामध्ये काही जणांनी आणखीन रोल नंबर लिहिलेला नाही आहे. त्याला पंचाक्षर नाही लिहिला आहे का तुम्ही? रोल नंबर 7 absent. रोल नंबर 17, रोल नंबर 17 प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? absent. रोल नंबर 22 प्रेजेंट है क्या? रोल नंबर 22 प्रेजेंट है क्या? नाही सर, तोच आजारी आहे. ओके. 7 7 और 17 कौन है? 7 कौन है? रोल नंबर 29, 29 is present. Yes, sir. 29 present. क्या नाम है 29? श्री गणेश. Tejas. तेजस, सॉरी, तेजस की श्री गणेश? तेजस. Tejas. Tejas. और 29 आहे दिसत आहे. 31, 31 प्रेजेंट आहे का? 31 प्रेजेंट सर. हाँ ते हे लिह रे, सर नंबर. प्रेजेंट सर. हाँ ठीक है, आपके प्रोफाइल पे नंबर लिखो. हाँ सर. तो 3
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे चले गए शायद, जान दो, देख लेते अगला अगला पार्ट हम देख लेते हैं. Now we'll deal with the numericals based on this oil, trash and lint content of cotton, and then oil, fat, sizes and resins in fiber sample. तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है, ट्रैश कैसे निकालते हैं. ट्रैश एनालाइजर का प्रैक्टिकल आपने किया होगा या ट्रैश एनालाइजर पढ़ा होगा थ्योरेटिकली. तो हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ट्रैश कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है. फॉर्मूलाज आप स्क्रीनशॉट मार के रखो और बुक में लिखो. ट्रैश कंटेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट वेट ऑफ ट्रैश बाय वेट ऑफ सैंपल. जो भी ट्रैश का वेट रहेगा टू दी वेट ऑफ टोटल सैंपल आप लोगे, when you express it into the percentage, it will be the trash content. Similarly, lint content also we can able to calculate. Weight of lint to the weight of sample expressed as percentage will be the lint content. Cleaning efficiency of card or cleaning efficiency of any machine, right? जहाँ पे हम एक्चुअली ट्रैश वगैरह निकालते हैं, ट्रैश वगैरह हम कहाँ पे निकालते हैं, जनरली ब्लू रूम में निकालते हैं, कार्ड में निकालते हैं, एंड सम माइक्रो कंटेंट्स हम ड्रॉफेम में वगैरह निकालते हैं. बट ड्रॉफेम तक हम जाएंगे नहीं, हम एक दो एग्जांपल ले लेंगे एक आध मशीन का, क्योंकि प्रोसीजर इज सेम. तो क्लीनिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? ट्रैश फेड माइनस ट्रैश डिलीवर डिवाइड बाय ट्रैश फेड इनटू 100. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन स्पिनिंग. सो यू जस्ट राइट डाउन दिस formulas, will directly take the numerical. I hope you have taken the screenshot of these formulas. Okay, this is the numerical. If the trash content of the lap is 2.77% and cleaning efficiency of machine is 77%, calculate trash in the card flavor. इसका स्क्रीनशॉट मार के लो, जल्दी जल्दी में हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स है. If the trash content of the lap is 2.77%, right, and cleaning efficiency of machine is 77%, calculate the trash in card flavor. Right, तो कैसे निकाल सकते हैं? Trash content of the lap means what? ये फीड है ना. फीड मटेरियल में ट्रैश कितना है सबको पता है. जो पुराने कॉर्डिंग मशीन से उसको फीड मटेरियल एज अ लैप रहता है एंड डिलीवर मटेरियल क्या रहेगा? कार्ड स्लाइवर रहेगा. तो लैप में कितना परसेंट बताया उन्होंने? 2.77% बताया. लैप में बताया इसका मतलब क्या है? ट्रैश फेड. लैप में बताया मतलब क्या है? ट्रैश फेड 2.77. और उन्होंने सीधा सीधा कार्डिंग का क्लीनिंग इफिशिएंसी बताया है. कार्डिंग का क्लीनिंग इफिशिएंसी बताया. कितना बताया? 77%. ठीक है. और क्या पूछा उन्होंने? कितना ट्रैश आएगा कार्ड स्लाइवर में, मतलब डिलीवरी में कितना रहेगा? ट्रैश इन डिलीवर्ड मटेरियल, हाउ मच इट इज? ट्रैश इन डिलीवर्ड मटेरियल, हाउ मच इट इज? सो वेरी सिंपल. This is the formula what we are going to use. Cleaning efficiency is equal to trash fed minus trash delivered divided by trash fed, right, into 100. Sorry. Therefore, cleaning efficiency कितना है? 77 is equal to trash fed कितना है? 2.77. trash deliver निकालना है, divided by trash fed कितना है? 2.77 into 100. आप निकालो ये कितना आता है बताओ. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ये बताने की जरूरत है नहीं एक्चुअली. निकाल के बताओ मुझे कितना आता है आंसर.
Crash delivery is equal to 77 into 2.77 divided by 100. minus TD है ना. तो क्रैश डिलीवरी इक्वल टू कितना आता है बताओ ना. कितना था आंसर. दिखाएगा किसी ने. बिल्कुल 0.64%. क्या आ गया ये. डिलीवर कार्ड फ्लेवर डिलीवर ना. डिलीवर आ गया ना. प्रतीक गुलाने बराबर है. 0.64% आता है. आंसर इज राइट. क्रैश डिलीवर विल बी 0.64%. 0.64%. तो इतना आंसर आता है. आप निकालो आपका आएगा. तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है. बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने जेट से ले लिया इसको. सो टुडे विल स्टॉप हियर. द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स remaining numericals we'll see in next lecture.